Hello everyone, this is day number 22 of your 30 days to crack CSAT program. Today we are starting with the understanding of ratio. Ratio is basically one of the pillars of arithmetic topic. जैसे one of the pillars, the other pillar is percentage that we have already covered. So percentage ratio इन पे आपको command हो जाता है, then you can look at other topics as well. Maybe a question on time and work or a question on time speed distance, simple interest, compound interest. इन पे आपको अच्छे से understanding होगी if you have a clear cut idea behind the concept of ratio. So let's start by understanding. If I give you a simple question, let's say the ratio of the number of boys and the number of girls in a particular class is 3 is to 5. क्या बोल रहा हूँ? The ratio of the number of girls and the number of boys in a given class is 3 is to 5. One boy and one girl joins the class. What is the new ratio? The initial ratio is 3 is to 5. A boy and a girl joins the class. What is going to be our new ratio? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो क्या आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि since this is 3 and 5, I'll write 3 plus 1 and here I'll write 5 plus 1. So this would be 4, this would be 6. So 4 upon 6 which is 2 upon 3. क्या ये करेक्ट आंसर होगा? टेल मी. सोच के बताओ जरा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप अभी कर रहे हो. No, this is not the correct way to go ahead with ratio. क्या होता है 3:5 क्या इंडिकेट कर रहा है पहले उसे समझते हैं. इट कुड बी अ सिनेरियो वेयर इन देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, देयरफॉर द रेशियो टर्न्स डाउन टू बी 3 and 5. व्हाट इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 30 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 50? अगर ये 30 होता और ये 50 होता, इवन देन द रेशियो वुड हैव बीन 3:5. बट ये मेरा एक्चुअल नंबर है, ये मेरा रेशियो है, हाँ या ना? The number is 30-50. The ratio boils down to 3 and 5. Now, if this is my exact number और मैं इस पे 1 ऐड करूं, यहाँ पे भी 1 ऐड करूं, तो ये बनेगा 31, ये बनेगा 51. तो we have a different ratio. But अगर मैं इस पे ऐड करूं, I would be getting a different result. So with the help of ratio, I cannot easily go to the exact number of elements in that term. So always in your question, whenever ratio is given, you write the exact value will always be 3n and 5n, where n is common between both of them. So n is basically a common multiplying factor for both of them. And also if you look at n here serves as the highest common factor for them. कि अगर मान लो मैं 30 और 50 को लिख रहा हूँ 3n and 5n, what can you write? 3 into 10 upon 5 into 10. This is 3n and 5n, where n is basically 10 and 10 is the highest common factor between these two numbers. वो highestly present है, वो वहां से simplify हो जाएगा और आपके पास जो resultant value बनेगा वो initially co-prime होगा. 3 और 5 और breakdown नहीं हो सकते. तो कुछ simplest concepts हैं. One of them is the terms of the ratio in the simplest form will always be co-prime or relatively prime to one another. मतलब वो और further breakdown नहीं हो सकते. उनके बीच में जो भी common था that is regarded with the help of this symbol n. तो आपने यहाँ पे n को क्या लिया है? एक common multiplying factor between the two terms. तो whenever you have this question, the boys and the girls, you should know that this is how you are supposed to represent the elements. Clear है? Now, moving aside, let's look at the next one, joint ratio or combining ratio. ठीक है, जैसे मान लो we have two elements, a is to b as 3 is to 5, b is to c as 3 is to 7. How will you write a is to b is to c? आपने क्या करा? a is to b is to c. You try to join these two ratios. This is known as joining of two ratios. When is this possible? This is only possible when you have a common element. A और B और C पे B common आ रहा है. So this could be a scenario wherein I'm talking about the salaries of two persons. The salary of A and B is 3 is to 5. The salary of B and C is 3 is to 7. तो यहाँ पे common क्या आ रहा है? Common आ रहा है आपके लिए element B. क्या common 3 हो सकता है? नहीं हो रहा है. Common is B. तो B यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है. How can you make it same? In order to make them same, go for a common multiple of 5 and 3. A common multiple of 5 and 3 is basically 15.
अब आपको 15 बनाना इन दोनों टर्म्स को, कैसे बनाओगे? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो. दिस वुड बी 3 into 3 9, 5 into 3 15, 3 into 5 15, which is the value for B already written. 7 into 5 is 35. So this is your resultant ratio for the combination. आपको चीजें क्लियर है यहाँ पे? हाउ डू यू कंबाइन? Whenever you wish to combine, you have to look at the common element. जैसे if I say A is to B is 3 is to 5 and C is to D is also 3 is to 5, can you combine A is to B is to C is to D? क्या ये possible होगा? नहीं होगा, because nothing is common between A and B. A, B, C, D, ये कोई भी element common नहीं आ रहा है. This is not possible because nothing is common. इसको आप common नहीं बोल सकते हो, इसको आप सेम नहीं बोल सकते हो, बिकॉज दिस कुड बी 3 5, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 और 5 हो सकते हैं, यहाँ पे शायद वो 30 और 50 हो सकता है, शायद ये 300 500 हो सकता है. सो दिस कैनॉट बी कंसिडर्ड, दिस पार्ट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज सेम. आपको सेम कहां से देखना होता है? एलिमेंट्स पे देखना होगा. एलिमेंट्स पे देखो क्या वो सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो रूल इट आउट. दिस इज हाउ यू कंबाइन रेशियो. आई होप ये क्लियर है. चलो अगर क्लियर है, आप मुझे इसका आंसर करो. A is to B is 2 is to 3, then C is to A is maybe 7 is to 9. What is A is to B is to C? आप बताओ पहले यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? आपको कॉमन दिख रहा है A की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 9. किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? क्या रिजल्ट होना चाहिए? प्लीज कमेंट. दिस विल गिव मी एन आइडिया कि आप इस चीज को एटलीस्ट फॉलो कर पा रहे हैं. Now these are basics of ratio. अगर आप रेशियो स्टार्ट कर रहे हो, these are something that you should definitely know. मतलब इतना तो आना ही चाहिए. Second is inverse ratio. For a set of ratio, let's say A is to B as 1 is to 2. What is the inverse for A is to B? The inverse for A is to B is simply B is to A, and this is 2 is to 1. जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ C is to D as 3 is to 5, the inverse for this is 5 is to 3. Clear है? But what if we have A is to B is to C as 1 is to 2 is to 3? Will the inverse be 3 is to 2 is to 1? कैसा होगा? सोच के बताओ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. So for two terms, let's understand कि ऐसा क्यों नहीं होगा. अगर यहाँ पे हो रहा है 1 is to 2 को 2 is to 1, 3 is to 5, 5 is to 3, then why this is not the case here? Simply because we are dealing with inverse ratio. The other name for inverse is basically reciprocal. अब देखो दो एलिमेंट होते हैं तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. आई कैन जस्ट रिवर्स देम एंड गेट टू द रिजल्टेंट इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो. बट द एक्चुअल वर्किंग बिहाइंड दिस इज समथिंग लाइक दिस. क्या एक्चुअल वर्किंग? ध्यान देना. A is to B is 1 is to 2. मैं बोल रहा इसका मुझे चाहिए इनवर्स. इनवर्स इज रेसिप्रोकल. So the reciprocal is 1 by 1 is to 1 by 2. That's it. Now we don't tend to keep the values with the denominator. So I'll go one step further and try to simplify the denominator. Denominator पे मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 1 और 2. तो I'll take the LCM of 1 and 2, which is 2. Now I'll try to multiply every term with 2. ये क्या रिजल्ट देगा मुझे? 2 is to 1. And therefore, for two elements, we simply don't go ahead with this calculation. We can remember it as take the inverse, take the reverse. But if A is to B is to C is 1 is to 2 is to 3, then how do we write it? We write it as 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3. Now tell me, what is the LCM of 1, 2, 3? 6 आएगा. 6 से सारे टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट बताओ क्या आएगा. इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. सो दिस इज 6 is to 3 is to 2. एंड दैट इज हाउ यू लुक एट क्वेश्चंस ऑन इनवर्स. देखो ये एक तरीका है और ये सबसे बेसिक तरीका है जिसके बेसिस पे आप इनवर्स निकालते हो. देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स टू लुक एट इट. फिलहाल अभी उस पर बात नहीं करते हैं बिकॉज लेट्स नॉट बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले लेना और फिर उसको प्रोसेस नहीं कर पाना. लेट्स नॉट गो देयर. लेट्स ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल. जैसे अगर आप शॉर्टकट में जाना चाहो तो ए बी सी के लिए क्या होगा इनवर्स? आप ए को छोड़ दो 3 प्लेसेस, बी एंड सी मल्टीप्लाइड, बी छोड़ दो ए एंड सी मल्टीप्लाइड, सी छोड़ दो ए एंड बी मल्टीप्लाइड. सो 1 is to 2 is to 3 will be written as 2 into 3, then 1 into 3,
then 1 into 2 which is simply 6:3:2, same result. क्लियर है? अगर ये क्लियर है आप मुझे बताओ व्हाट इज 1:3:5 इनवर्स, प्लीज कमेंट क्विकली। 1:3:5 का इनवर्स क्या होगा? क्या ये 5:3:1 होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। क्या होना चाहिए ये बताओ। मूविंग ऑन। ये इनवर्स रेशियो के कॉन्सेप्ट पे यू कैन डेफिनेटली लुक एट क्वेश्चंस व्हिच आर पार्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कि the time ratio of three moving cars is given as 1:2:3. What is their speed ratio when we talk about same distance? तो उसका इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स आपको पता है क्या होगा 1, 2, 3 का। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द ईयर 2013. It says in a rare coin collection there is one gold coin for every 3 non-gold coins. So if I take the ratio of gold and non-gold coins, I'll write it as gold, non-gold coins. There is one gold coin for every 3 non-gold coins. अब ये रेशियो है इसका। रेशियो अगर है तो आपको पता है कि एग्जैक्ट नंबर कैसे निकालोगे? n से मल्टीप्लाई करके। लेट्स कीप अ कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज n. नाउ 10 more gold coins are added to the collection. 10 more gold coins are added. So plus 10. And the ratio of gold coins to the non-gold coins would be 1/2. ये 1:2 बन गया। क्या ये इक्वेशन आप फॉलो कर पा रहे हैं? सिंपल, इस तरीके से ऐसे सॉल्व किया, ये 1/2 बन गया। नाउ सिंस दिस इज अ न्यू रेशियो वी टेंड टू कीप इट एज अ कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर y. नाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस n and n? ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। 1n/3n प्लस 10 गिवन है। सिंस वी हैव एन अरिथमेटिक ऑपरेशन एज प्लस और माइनस, तो ये n यहां से सिंप्लीफाई नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। क्लियर? तो मैं इस n को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। बट कैन आई सिंप्लीफाई दिस y? डेफिनेटली आई कैन सिंप्लीफाई दिस y. So I'll simplify this. Now this would be something like 1n plus 10 upon 3n and this is 1/2. अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, so this would be 2n plus 20 which is equal to 3n. And what do we need? We need 2n इस तरफ आएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 20. अब n की वैल्यू 20 आपसे पूछा क्या है? Total number of coins in the collection now becomes, the total number of coins in the collection is 1n plus 10 upon 3n. 1n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20. 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60. 60 and 20 is 80. 80 plus 10 is 90 coins. Simple. Option A is your correct fit. Now we can also look at this question with the help of, our first method, which is the joint ratio method. That is a smarter way to look at such problems. But I would suggest आप सिंपली देखो, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन का, उसका डेटा फ्रेम करो और इसको बस सॉल्व कर लो। लेट्स नॉट गो इनटू द शॉर्टकट्स फॉर रेशियो स्पेसिफिकली, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं बताने को। बट आपको ये भी देखना है ध्यान में कि क्या सीसैट स्पेसिफिक पोर्शन को मैं थ्रू सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट चीज़ों से फॉलो कर सकता हूँ। इफ यस देन आई विल स्टिक टू इट। अगर आपको इसको सॉल्व करना ही है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट रेशियो, then let's just look at one question with the help of the concept of joint ratio. क्या कह रहा है? Gold coins to non-gold coins, the initial ratio is given as 1:3. उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंज हो रहा है? You are adding 10 gold coins. गोल्ड coins पे 10 ऐड कर दिया। अब रेशियो क्या बन गया? The ratio became 1:2. आप मुझे बताओ, क्या नॉन गोल्ड कॉइन्स चेंज हुए? इनिशियली आपके पास एक बॉक्स में गोल्ड और नॉन गोल्ड कॉइन्स थे, आपने 10 गोल्ड कॉइन्स ऐड करे, बट क्या आपने नॉन गोल्ड कॉइन्स को बाहर निकाला या फिर कुछ ऐड करा उस पे? नो। सो नॉन गोल्ड कॉइन्स रिमेन सेम। तो अगर ये सेम है, दिस 3 and 2 शुड ऑल्सो बी सेम, बट यहां पे दीज आर डिफरेंट। ये बात समझ में आ रही? ए बी बी सी, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इन दीज टू रेशियोज, दिस हैज टू बी सेम एलिमेंट। कैसे सेम करोगे 3 और 2 को? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो। नाउ दिस वुड बिकम 2, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 6। नाउ लेट्स कीप वन कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सो लेट्स पुट देम एज n. अब जरा आप देखो, इनिशियली यू हैड 2n and then you had 3n gold coins.
इनिशियली यू हैड 6 एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स, फाइनली यू हैव 6 एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स. ये कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 से 3? 1n, and this 1n is actually due to 10 gold coins that you have added. So 1n की वैल्यू 10. आपसे क्या पूछा है? What is the number of coins in the collection now becomes? The collection now becomes 9n, which is 90 coins. So these are just smarter way to look at such problem. But I would suggest, क्या आप ये follow कर पा रहे हैं? अगर आप ये फॉलो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. आप इस पे ही फोकस्ड रहो और चीजों को कवर करने पे ज्यादा काम करो. मूविंग ऑन. आउट ऑफ 120 एप्लीकेंट्स फॉर अ पोस्ट, 70 आर मेल. देखो, कभी भी कैटेगराइजेशन करना होता है ना हमें बेस्ड ऑन जेंडर, सो वी टेंड टू डू इट इन टू मेजर कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल. 70 आर मेल, so 50 would be females. All right. 80 have a driver's license. Again, another categorization of these same 120 people. किस पे कैटेगराइज करना? ड्राइविंग लाइसेंस, DL and no DL. कितने हैं? 80. So if here we have 80, here it should be 40. All right. क्या पूछा जा रहा है? What is the ratio between the minimum to the maximum? Minimum to the maximum number of males having the driver's license. ड्राइवर्स लाइसेंस मिनिमम कितने मेल के पास? पहले मैक्सिमम पे बताओ. देयर आर टोटल ऑफ 70 मेल एंड देयर आर 80 पीपल हु हैव द ड्राइविंग लाइसेंस. तो हाउ मेनी मेल कैन एट मैक्स हैव द ड्राइवर्स लाइसेंस? 70 ऑफ देम. ये तो बात समझ में आ रही है. देयर आर 70 मेल and 80 driving license are there, so all 70 can be occupied here. All 70 can have the driving license. Next, minimum number of male that have the driving license. तो मैं क्या बोलूंगा? मेल डोंट हैव द ड्राइविंग लाइसेंस. तो कितने हो सकते हैं? आप यहां से आउट ऑफ 70 यहां पे सिर्फ आप 40 पुट कर सकते हो. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 30 मेल्स? मेल्स आर क्लासिफाइड एज 70 मेल्स आर क्लासिफाइड एज 40 एंड 30. मिनिमम से मिनिमम तो देखो यार, आप अगर मैक्स आउट करने की कोशिश करो तो आप 40 पे जा सकते हो. 40 लोग हैं ना जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ये 40 यहां से चले गए. मिनिमम 30 मेल्स के पास तो होगा ही होगा, दैट इज 100% श्योर. सो 30 वुड बी एट द टॉप. दिस विल गिव मी 3:7. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट फिट. ऑप्शन डी 7:3 इज रॉन्ग. 1:2 is different from 2:1, especially for ratio. मिनिमम टू मैक्सिमम पूछा है तो यही होगा. मैक्सिमम टू मिनिमम पूछता तो 7:3 होता. Although I have changed the option here, in the exact question this was not the option, but please understand this is only here to help you understand the difference. कि क्या अगर 3:7 बोल रहे हो तो 7:3 भी करेक्ट होगा? नहीं होगा. रेशियो के टर्म में बिल्कुल नहीं होगा. So 3:7 is our correct fit here. This is a question from the year 2013. Moving on. The monthly income of Komal and Asha are in the ratio 4:3. The monthly expenses are in the ratio 3:2. However, both save rupees 600 per month. What is their total monthly income? अब एक चीज नजर डालना, ये जो क्वेश्चन है 2000 में पूछा गया था, ये 2015 में पूछा गया है सेम क्वेश्चन, ये 2017 में पूछा गया एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सेम डेटा दैट वी हैव. तो ये 3 क्वेश्चंस को एक बार ही ध्यान से समझते हैं. लेट्स लुक एट क्वेश्चंस ऑन इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग्स. आपकी जो भी इनकम है ना, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स, है ना? whatever is your income is exactly equal to expense plus savings. Now, the monthly income of Komal and Asha income is 4:3. ये income ratio है इनका, ये एक different ratio है. Let's keep the common multiplying factor as n. Now, their monthly expenses are in the ratio 3:2. ये एक नया रेशियो है तो इसका एक दूसरा कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लो. नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माय इनकम, मैंने जितना अर्न किया है, इफ आई सब्ट्रैक्ट माय एक्सपेंसेस, व्हाटएवर आई एम लेफ्ट विथ इज द सेविंग्स. सो इनकम माइनस एक्सपेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेविंग्स. सेविंग्स की वैल्यू कितनी गिवन है? बोथ ऑफ देम सेव 600 रुपीज पर मंथ. 600 रुपीज पर मंथ. नाउ लेट्स मेक इक्वेशंस हियर. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान देना, कि फॉर कोमल 4n
minus 3y, this is equal to 600. And for Asha, 3n minus 2y is also equal to 600. ऐसा बोल सकता हूं? ओके. What is their monthly income? मुझे n की वैल्यू चाहिए in order to find the income. If I have the value of n, I can quickly calculate the value for income. So I'll try to make y same. Y same करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इससे 3 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस पार्ट को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So overall this would be 4 2s are 8n minus 6y, this is equal to 1200. और ये बनेगा 9n minus 6y, this is equal to 1800. ये बड़ा वैल्यू है. इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इससे. तो अगर आप दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा? ये 9 minus 8 1n, 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो गया. 1800 से 1200 चला गया 600. 1n की वैल्यू 600. आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम? देयर टोटल मंथली इनकम इज बेसिकली 7n और 7 6 आर 4200. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट फिट. ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को देखने का. बट फॉर इनकम एंड एक्सपेंस बेस्ड क्वेश्चंस वी ऑल्सो हैव अ शॉर्टकट टू लुक एट. आई होप ये आपने समझ लिया, कवर कर लिया. तो एक बारी क्विकली ध्यान देते हैं हाउ टू लुक एट क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंस क्विकली विद द हेल्प ऑफ स्मार्टर रूल. कोमल एंड आशा, income expense. Income is 4:3, expense is 3:y. Their savings are 600 and 600. Now whatever rule I'm going to discuss right now is limited to income expense question. इस पे ही अभी के लिए आप काम करना. ठीक है, चलो ध्यान दो. Let's multiply these two. 4 2s are 8 units, 3 3s are 9 units. Let's take the difference of these two units. ये कितने यूनिट के बराबर आएगा? 1 यूनिट के बराबर आएगा. Okay. Now let's multiply these two. 6 3s are 18, 6 2s are 12. So this is 1800 minus 1200. The difference, modulus difference between them is 600. So we get the value of 1 unit. 1 unit की value कितनी आ रही है? 600. But with this unit, we can only find income. This is another way to solve linear equations into variables. उस पे I'm getting the value for income. So I'll say 4 and 3. This is 7 units. 1 unit की value 600. 7 unit की value 7 into 600, which is 4200. Now, if this is clear, आप quickly इसका respond करो. Take this as homework because it is based on the same concept. This is a question from the year 2015. Peter and Paul, ratio 4:3, income, expense ratio 3:2. Both of them save 6000. पिछली बार क्या था? 600 था. मंथली इनकम रेस्पेक्टिवली क्या है उनके लिए? क्या आप नहीं सॉल्व कर सकते? आप डेफिनेटली इसे सॉल्व कर सकते हो. प्लीज मुझे बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर. मूविंग ऑन. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2017. देखो बिल्कुल सिमिलर है. x:y क्या गिवन है? मंथली इनकम. इनकम इज 4:3, एक्सपेंस 3:2, ईच सेव 6000. What is the total monthly income? Total monthly income is this part. क्या आप नहीं बता सकते? क्लियर है. सो एक ऐसा क्वेश्चन करके जाना. शायद चांसेस है कि ये अगर पूछा जाए तो आपके लिए बढ़िया है. क्या आप ऐसे क्वेश्चन को तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लोगे. चलो मूविंग ऑन. अब जरा समझने पे आते हैं. देखो 30 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 180 ml water in a vessel A. Then we have vessel B and then we have vessel C. Let's start with vessel A. 30 ग्राम शुगर बाई वाटर में कैलकुलेट कर रहा हूँ. 30 by 180, this is basically 1/6. 1/6 means 1/6 क्या है? शुगर है. तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, उसको डिस्कस करेंगे. बी पे आ जाओ. 40 शुगर, 280 वाटर, सो दिस बिकम्स 1/7. 1/7 आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं, वापस आओ, सॉल्व करो इसे. 20 ग्राम एंड 100. 1 part, 5 parts. Okay. 6 parts, 1 part. 7 पे 1 और 5 पे 1.
इट इजंट इट ऑब्वियस कि ये सी वाला पार्ट सबसे ज्यादा शुगर कंटेन कर रहा है? आउट ऑफ 5 1 है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1/6 की वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज 1/3? 33.33% में ये बताया है, दैट इज हाफ ऑफ इट, सो इट शुड बी 16.66%. व्हाट इज 1/7? 142857, 1428 14.28%. 1/7, 2/7, 3/7 ये इसी पे बेस्ड है शॉर्टकट्स. 1/5 is 1/5 into 100 which is 20%. देखो मैंने बोला भी था कि लुकिंग एट 1/6, 1/7, 1/5 आपको यहां पे आइडिया लग गया कि C is containing more sugar or the maximum amount of sugar. चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं. The solution in vessel B, the solution in vessel B is sweeter than that in C. No, is less sweet than, is the least actually sweeter than that in A. No, as sweet as C. No, less sweet than that in C. Yes, option D is the correct fit because ये सबसे less sweet है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9. ओके, these are based on certain criteria. जैसे क्या given है? 2 glasses of equal volume are respectively half and 3/4 filled with milk. They are then filled to the brim by adding water. Their contents are then poured into another vessel. What will be the ratio of milk to water in this vessel? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हाउ डू यू फिगर आउट व्हाट कुड बी द टोटल वैल्यू? एक टोटल वैल्यू अज्यूम कर लेने से मेरे लिए चीजें आसान हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर्स पे. तो आपके पास 2 ग्लासेस गिवन है, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर कंटेंट है, यहाँ पे भी मिल्क एंड वाटर कंटेंट है. आपने क्या करा, इस पूरे कंटेंट को एक बड़े से टब में मिक्स कर लिया. इसका भी मिल्क एंड वाटर कंटेंट होगा. यही आपसे पूछ रहा है किस रेशियो में कंटेंट है. दैट्स द क्वेश्चन. क्लियर? नाउ what can we assume as the total part, because it says 2 glasses of equal volume, तो इन दोनों का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है. तो what can you assume as the total parts? See, हाफ का मतलब होता है 1/2, यहाँ पे हाफ गिवन है, एंड सेकंड वाले में 3/4 मेंशन है, तो 3/4. ऑलवेज टेक द टोटल एज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. ये क्यों कर रहा हूं? बिकॉज फिर ये चीजें आराम से सिंप्लीफाई हो जाएंगी. अब मुझे टोटल एज्यूम करना है, मैं इसे 100 भी एज्यूम कर सकता हूँ, हाँ या ना? अगर मैं इसे 100 एज्यूम करता हूँ तो ये 50 और 50 हो जाएगा, ये 75 और 25 हो जाएगा. आई कैन प्रोसीड विथ इट. बट मैं एक सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट वे पे मुझे दिखता है ये डिनोमिनेटर्स पे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 and 4 which is 4. सो आई टेक द टोटल पार्ट्स टू बी 4 पार्ट्स. टोटल कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 4 पार्ट्स. अब जरा ध्यान से समझना. हाफ फिल्ड विथ मिल्क, तो अगर 4 पार्ट्स टोटल है, हाफ फिल्ड विथ मिल्क है, तो 2 पार्ट्स मिल्क होगा और यहाँ पे भी 2 पार्ट्स वाटर आ जाएगा. क्यों आएगा वाटर? बिकॉज दे आर देन फिल्ड टू द ब्रिम, मतलब टू द टॉप, बाय एडिंग वाटर. Initially this is the case. Initially 3/4 is milk, so 3/4 milk means 3 parts milk and the next part out of 4 part should be water. एक पार्ट रिमेनिंग होगा, उसमें आपने पानी डाल दिया. अब इस दोनों ग्लास को आप ऐसे पकड़ो और एक बड़े से वेसल में पोर कर दो. जैसे आप पोर करते हो आपको क्या दिखता है? मिल्क इज 2 + 3, 2 + 3 is milk, water is 2 + 1, so this is basically 5:3. What will be the ratio of milk to water? Milk to water is 5:3. Option D is your correct fit. Clear है क्या? Follow कर पा रहे हो? Now, let's look at one more question. 2 glasses of same type here indicates equal volume, respectively 1/3 and 1/4 full of milk. तो अगर 1/3 है, 1/4 है, आप टोटल क्या बोलोगे? टोटल आप बोलोगे दिस इज LCM of denominator 3 and 4 which is 12. तो आपने 12 मान लिया टोटल वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास. ग्लास नंबर 1 मिल्क एंड वाटर, ग्लास नंबर 2 मिल्क एंड वाटर. टोटल यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है. चलो देखते हैं. दे आर देन फिल्ड टू द ब्रिम विथ वाटर. 1/3 मिल्क है, 1/3 ऑफ दिस 1/3 ऑफ 12, 4 यूनिट्स. सो 4 अगर वाटर मिल्क है,
रिमेनिंग क्या आएगा, आप रिमेनिंग पे पानी डाल रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू बी 8 यूनिट्स ऑफ वाटर। अगर 12 पार्ट्स यहाँ पे है एंड दिस इज 1/4 ऑफ 12 इज बेसिकली 3, तो अगर 3 मिल्क है 3 पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स क्या होगा 9 पार्ट्स। दिस इज वाटर। नाउ यू टेक आउट दीज 2 glasses, they are then filled with water and the contents are mixed in a pot, so this is a pot for us। इसका टोटल कितना हो जाएगा 12 + 12 24 यूनिट्स। मिल्क एंड वाटर कैसे निकालोगे, मिल्क बोलो 4 and 3 7, 8 and 9 17। What is the ratio of milk and water in the pot? Milk and water in the pot is 7:17, option A। Clear है? Moving on to the next one, let's give this a try। There is a milk sample with 50% water in it if 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk। देखो 50% का मतलब क्या है, और यहाँ पे 1/3 आ रहा है, तो 1/2 और 1/3 आपको पता है टोटल क्या होगा, LCM of 2 and 3, LCM of 2 and 3 is 6। तो अगर ये 6 parts हैं and it is milk and water, there is milk sample with 50% water in it। एक milk sample है जिसमें 50% water है, तो 50% ओरिजिनल milk है। So 3 parts milk, 3 parts water। ये समझ में आया? क्लियर है? Now 1/3 of this milk, ये वाला जो मिल्क सैंपल है, अब देखो इसको मैं मिल्क और वाटर बोल रहा हूं, फिर मैं यहाँ पे मिल्क बोल रहा हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक ओरिजिनल मिल्क है, आप उसमें पानी मिला दो, वो इम्प्योर मिल्क जरूर होगा, बट उसको भी तो आप मिल्क बोल के एड्रेस करोगे। ये बात समझ में आ रही है? अगर दूध में आप पानी मिला रहे हो, यू ऑल्सो रेफर टू दैट सोल्यूशन एज मिल्क। सो इफ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज टेकन आउट, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 of 6 is basically 2 parts। 2 parts अगर आप बाहर निकालोगे, and since this is a mixture, it will be containing both of these values in exact same ratio as contained here। रेशियो क्या बनेगा इसका 1:1। तो अगर 2 parts में इस पूरे सोल्यूशन का बाहर निकालूंगा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर, तो इस 2 parts में 1 part would be milk and 1 part would be water। ये 2 पार्ट मिल्क नहीं होगा, 2 पार्ट वाटर नहीं हो सकता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज यहां पे इक्वल रेशियो इसका कंटेंट है। एंड दिस इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क का मतलब प्लस 2 पार्ट्स ऑफ मिल्क। तो चलो अब इस नए वाले कंटेंट को देखते हैं कि क्या बन गया। मिल्क एंड वाटर अगर मैं यहां पे देखूं, 1 पार्ट मिल्क 2 पार्ट्स मिल्क, सो 3 पार्ट्स मिल्क 1 पार्ट वाटर, यही बन गया नए वाले कंटेंट पे। What then water in the new mixture will fall down to? Water in the new mixture, this is the new mixture। water कितना है 1 part out of a total of 3 + 1 4 parts into 100, तो ये 25% पे ही रह गया ना। अगर टोटल 1 + 4 1 + 3 4 पार्ट्स है, तो उसमें मिल्क कितना है 1 पार्ट ही है, 3 पार्ट्स कुछ और है, तो 25% पे वाटर फॉल डाउन कर जाएगा। Next, you can join our Telegram channel for any course related information that we tend to share। काफी important है, इसे join कर लेना so that you don't miss out on any information that we share। All right, this is a question from the year 2024। Let x be a 2-digit number and y be another 2-digit number formed by interchanging the digits of x। ठीक है, this type of question we have already taken care of in our 2D and 3D number lectures। 30 डेज सीरीज पे आप जाओ, ये आपको मिल जाएगा। इस पे हमने इस टाइप के सेम क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, बट सिंस ये यहाँ पे आ गया है, और आई गेस अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपने ये तो जरूर देखा होगा। ट्राई टू रिकॉल एन आंसर कि क्या आपसे ये हो रहा है। जैसे देखो, एक x एक 2 डिजिट का नंबर है, तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर मैं t और u के फॉर्मेट पे लूंगा। t रिप्रेजेंट द डिजिट एट द 10th प्लेस, u रिप्रेजेंट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, और करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा 10 into t + 1 into u which is u। y is another 2-digit number found by interchanging the digits of x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी ut, और y के लिए क्या आएगा 10u + t। क्लियर है? इफ x plus y जैसे आप इनको ऐड करोगे, क्या होगा ऐड, 10t + 1t 11t, 1u + 10u is 11u,
और यू कैन से 11t प्लस यू, और ये शॉर्टकट तो आपको आता है. इफ यू हैव डन दिस लेक्चर देन यू डेफिनेटली नो, देन व्हेन वी ऐड अ नंबर एंड इट्स रिवर्स द सम इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 11t प्लस यू. अगर मैं नंबर और उसके रिवर्स को माइनस करूं, द वैल्यू फॉर दिस इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ 9t माइनस यू. ये क्लियर है ना? ये तो शॉर्टकट है. व्हाट आई मीन कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे इसको समझोगे, बट सिंस आई नो दीज कॉन्सेप्ट्स तो आई कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन राइट फ्रॉम हियर दैट x plus y, मतलब these two numbers are added, number and its reverse is added, so this will be 11t plus u, and this is equal to the greatest two digit number. Greatest two digit number is 99. तो आप इस क्वेश्चन को इस यहां से स्टार्ट करोगे. Instead of wasting time writing all of this, this is where the shortcut comes into play, or more or less this is not just a shortcut, this is a concept. आपने इसको ब्रेक डाउन किया पूरी तरीके से, फिर आपको दिखा कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है. आप इसको जब लिखते हो, सॉल्व करते हो, तो आपको ये रिजल्ट मिलता है. तो लेट्स नॉट कॉल दिस शॉर्टकट, दीज आर बेसिकली कॉन्सेप्ट्स. नाउ t plus u would be 9, so t plus u is exactly 9, and when we know both of these numbers are two digit numbers, तो मैं यहाँ पे 9 और 0 नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं 91 नंबर को लेता हूँ तो इसका रिवर्स क्या होगा? 09. 09 इज नॉट अ टू डिजिट नंबर, तो मैं यहाँ पे 9 इसको इक्वेट कराने के लिए 90 नहीं ले सकता, बट आई कैन डेफिनेटली यूज 8 plus 1, 7 plus 2, then 6 plus 3, 5 plus 4, or 4 plus 5, 3 plus 6, 2 plus 7, and 8 plus 1. How many values? 8 values. ऑप्शन डी. और ये फॉर्मेटिंग है. आप बड़े से स्टार्ट करो, धीरे 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 प्रोसीड कर जाओ, छोटे नंबर्स तक चले जाओगे और आपका आंसर आ जाएगा. जैसे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस सेम क्वेश्चन को ट्राई करो. द रेशियो ऑफ अ टू डिजिट नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इज डिजिट्स. जैसे टू डिजिट नंबर 10t प्लस u आ गया. नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज बेसिकली 10u प्लस t. दिस रेशियो इज 4/7. रेशियो के लिए आप y लिख के काट डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 70t प्लस 7u. दिस इज 40u प्लस 4t. 70t minus 4t. This is 40u minus 7u. This is 66t. This is 33u. Or t by u is basically 33/66, which is 1/2. अब जरा समझना, t is to u is 1:2 है ना, और t by u is basically 1/2. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट्स दैट दीज आर डिजिट्स. बेसिकली डिजिट्स का क्या इन्फ्रेंस है, क्या आपको समझ में आता है कि यार ये दो डिजिट का नंबर नहीं बन सकता. टी एंड यू हैव टू बी डिजिट, वेर इन टी और यू इज बेसिकली द डबल ऑफ इट. इसकी जो भी वैल्यू उसका ही डबल है दूसरा वाला. सो द नंबर फ्रॉम हियर कुड बी इन दिस फॉर्मेट. तो पहला नंबर मेरे लिए शायद 1 to 12 हो सकता है, 21 हो सकता है. देन इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2, तो दिस वुड बी 2, 4, और ये बनेगा 42. ये भी ट्रू है. अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये 63 उसका रिवर्स, ये भी पॉसिबल है. देन फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर. 1 into 4 is 4, 2 into 4 is 8, 84. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 into 5, 5, एंड 5 into 2 is 10. तो क्या ये पॉसिबल है? इज दिस अ टू डिजिट नंबर? नो. सो वी स्टॉप हियर. अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊं, हाउ मेनी पेयर्स डू आई हैव? आई हैव 4 पेयर्स. The number of such pairs is basically 4. 1:2 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये इसका डबल है बेसिकली. क्लियर है क्या? और इस पे परेशान मत होना, टी या फिर यू आ रहा है, आप इस तरीके से देख लो. क्लियर है कि नंबर फॉर्म एंड बाय रिवर्स. रिवर्स का मतलब है 4:7 आ रहा है. इसका ये मतलब है कि अगर छोटा 12 है और इसके बाद 21 करोगे, इसका रेशियो 4:7 आएगा क्या? चेक कर लो, आएगा ही. अगर आपका नंबर है 24 एंड 42, इसको भी सिंप्लीफाई करने पे 4:7 आएगा. 36/63, 48/84, ये भी सिंप्लीफाई करने पे 4:7 आएगा ही आएगा. ये क्वेश्चन भी हमने 2D 3D नंबर पे डिस्कस कर लिया है. अगर आपने इसको गो थ्रू नहीं किया है तो जाओ उसे वापस से देख लो. नाउ दिस इज वेयर वी आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है.
तो पहले इस पे जरा बात कर लेते हैं। विच इज पार्ट ऑफ रेशियो। क्या है पार्टनरशिप? अगर आपके साथ कोई पार्टनर आ रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा आपको या फिर लॉस होगा वो हमेशा वेटेड पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एंड द टाइम पीरियड फॉर विच यू हैव इन्वेस्टेड द मनी उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, आप कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बेसिस पे हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन टाइम फैक्टर को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास दो लोग हैं ए एंड बी, व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू द टाइम पीरियड फॉर ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू द टाइम पीरियड फॉर बी। इस तरीके से मैं प्रॉफिट निकालूंगा या फिर लॉस निकालूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। चलो अब जरा बात करते हैं कि हाउ डू यू लुक एट क्वेश्चंस ऑन दिस। Amit started a business by investing rupees 30,000. Rahul joined. So Amit upon Rahul, investment बोलना अमित की 30,000. So 30K. Rahul joined the business after some time and invested rupees 20,000. So 20K. At the end of the year, एट द एंड ऑफ द ईयर का ये मतलब है कि अमित ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और एट द एंड ऑफ द ईयर उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो इट इज अज्यूम्ड दैट दिस पर्सन स्टेड इन द बिजनेस फॉर 12 मंथ्स और होल ऑफ ईयर। राहुल ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर सम मंथ्स, तो राहुल कुछ लिमिटेड मंथ्स के लिए इस बिजनेस पे होगा। At the end of the year, the profit was divided in the ratio 2:1. So profit is 2/1. Let's keep this y और simplify कर दो। चलो अब जरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 होगा, 6 3 18 होगा, और ये 2 से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 3 9। सो m की वैल्यू है 9। m9 क्या इंडिकेट कर रहा है? m9 इंडिकेट्स दैट राहुल हैज इन्वेस्टेड द मनी फॉर 9 months इन 1 ईयर। इन 1 ईयर ये अगर 9 मंथ्स के लिए अपने वैल्यू को इन्वेस्ट कर रहा है, देन दिस पर्सन मस्ट हैव जॉइंड 12 minus 9 विच इज आफ्टर 3 months। 3 महीने के बाद कोई ज्वाइन करेगा तो उस साल में वो सिर्फ 9 महीने के लिए इन्वेस्ट कर पाएगा पैसे को। So after how many months did Rahul join the business? Rahul joined the business after 3 months. For how many months was Rahul invested in the business? For 9 months. Clear है? So this is the concept regarding partnership wherein you have to look at the weighted part. आप किसी एक simply investment के basis पे या simply time के basis पे नहीं कर सकते, collectively करना होगा इन दोनों को। Let's give this a try. This is also a question from partnership. आप बस इसमें मुझे ये बताओ, there are 3 elements, अभिषेक, पीयूष एंड रवि। आप मुझे बताओ इनका प्रॉफिट रेशियो क्या आ रहा है। प्लीज कमेंट द प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही लोगे, बिकॉज यू नो हाउ टू डिवाइड। प्रॉफिट रेशियो अगर मान लो 1:2:3 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा अभिषेक को कितने मिले, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 1 + 2 + 3 6 पार्ट्स इंटू 16,500। बी को कितने मिलेंगे, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 6 पार्ट्स इंटू 16,500। सी को कितने मिलेंगे, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6 पार्ट्स इंटू 16,500। बट व्हाट इज आवर रेशियो, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है ना। पहले आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बताओ क्या होगा, कमेंट करो इसे और मुझे बताओ कैलकुलेट करके व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल लिए, मैंने अभी एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टॉपिक रेशियो। I hope with this you have got a rough clarity regarding how to approach questions on ratio. जो important concepts थे उन पे काम कर लेना। Also, this is a Telegram channel you can join. Plus, if you are willing to join any of our courses, so this is something that we are offering for 2026. Only the FLTs, 10 FLTs from our end, and not crash course or the foundation, because we have stopped the enrollment into these 2 courses as of now. We are only taking enrollment for 2027 batch for these 2 courses. All right. Thank you, everyone. Happy learning. Take care. Bye-bye.